हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर। After the Napoleon has a defeat in 1815, many Germans want to on independent Germany. Germany was a confederation of 39 small states. There is a Germany was a confederation of 39 small states, led by the Austrians and Parisians also here. And these states were away at the war with the one another and returning to economic progress of the Germany. The King of Paris and Cassier Williams is one. He chose to Prime Minister as a Bismarck of unified Germany under the rule of Prussia, and the security of Austria is a France completely. Bismarck as was the fearless and believed in their urgent need for a unification in a Germany. Here show the most important diagram is the Otto von Bismarck. This is the most important here, and here is the thinking of Otto von Bismarck. There is the he started with there is the modelization of the army and defining their parliament in the collecting of taxes. His policy come to be now to blood and iron policy and even him to the nick of the iron chancellor. There is important also here iron chancellor. With this is an improved army, Bismarck and encouraged their German population of Slavings and the Holstein their revolt against the ruler Denmark. In 1864, Bismarck is joined hand with the Austrians against Denmark. Bismarck as a next target was Austria, and Prussia is defected to Austria and formed the Northern German Confederations. Bismarck promised there is a permanence of balance to Italy and the keep her out of the war. Austria was forced to the give of Venice to be Italy, and indeed the Austrians control in Italy. He also promised territorial compensations of Napoleon III of France and keep it out of the war. He had already a secret to Russia as a support by helping them in a surprising to the revolt in Russia controller Poland. You know that Russia is control of Poland. The only is the Vascals is the precious is dominance of Germany wherefore a small German state in a South Germany and disapproval of Napoleon III of France. But the disagreement between the two centuries led France to be declared as a war on Prussia. And Franco-Prussia's war was quite short. Prussia is invaded France in 1871 and they defeated their French. The Napoleon III is advocated there is authorities of France was forced to be give up alliances and alliance. The remainder of the German state is expect Austria were an exit and the joining with the German. And the unification of Germany was the complete under Cassier William I. And soon Germany emerged as their leading power in Europe. And the build of the colonial empire further German is in economic interest and increasing a German influence in the world. साथ आता है जर्मनी का एकीकरण। देखिए जर्मनी का भी एकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। अगर हम बात करें जर्मनी का एकीकरण के लिए तो कहते हैं 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, जब 1815 में नेपोलियन हार गया तो उसके बाद कई जर्मनी एक स्वतंत्र जर्मनी चाहते थे, यानी हर एक राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र करना चाहता था उस समय। तो जर्मनी जो उस समय जो था 39 छोटे राज्यों का संघ था, यानी उस समय जर्मनी जब नेपोलियन का राज्य था उसमें 39 छोटे राज्य के संघ था। और ऑस्ट्रिया और जो है प्रायेशिया के नेतृत्व में था, यानी उस समय ऑस्ट्रिया और प्रायेशिया के नेतृत्व में ये 39 जो है राज्य संघ थे और यह राज्य हमेशा एक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति में थे। प्रेशिया के राजा कैसर विलियम्स जो है प्रथम प्रधानमंत्री बिस्मार्क को प्रेशिया के शासन के अधीन जर्मनी की एकजुट करना चाहता था। ये इसका जो काफ़ी महत्वपूर्ण
जिज्ञासा था। किसका? कैसर विलियम्स का, जो प्रधानमंत्री के सहारे पूरा जर्मनी को एकत्र करना चाहता था और ऑस्ट्रिया और फ्रांस को पूरी तरह से बाहर रखना चाहता था। बीमार्क निडर था और उसके जर्मनी के एकीकरण के तत्काल आवश्यकता में विश्वास भी था, यानी इसका विश्वास ही इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह उसने सेना के आधुनिकीकरण के साथ ही शुरू किया, यानी इसके लिए उसने जो रास्ता अपनाया वो था सेनाओं को आधुनिकीकरण करना, क्योंकि उसको पता था कि सेना अगर सशक्त है तो ये करना कोई मुश्किल कार्य या दुष्कर्म कार्य नहीं रहेगा। उसने खून और आयरन की नीति के लिए जाना जाने लग गया और उसने लो चाल्सलर की उपन्यास अर्जित भी की, यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसको जो है खून और आयरन की नीति के लिए, यानी देखा जाए तो ये बलबन का नीति जो था उस नीतियों के लिए जाना गया, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी। यहाँ पर जो आपके समक्ष तस्वीर जो आप देख रहे हो ये ऑटो वॉन बिस्मार्क का है, जो कि उस समय इस नीति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था, तो ये जरूरी था। कहते बीमार्क निडर था और इसी के कारण पूरा जो है एकीकरण भी हो पाया। और इसने जो यूज़ किया लो नीति का जो रास्ता अपनाया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। बीमार्क जो था काफ़ी महत्वपूर्ण था और उसने सेना में सुधार के साथ ही बिस्मार्क ने स्चेलियबिंग हेलस्टेन की जर्मनी आबादी को उसके डेनमार्क शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित किया, यानी उसकी विचारधारा था कि विद्रोह जब तक होगा नहीं तब तक जो है ये आज़ाद नहीं हो सकता। इसलिए 1864 में बीमार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ डेनमार्क के खिलाफ हाथ मिला लिया और बीमार्क का अगला लक्ष्य था ऑस्ट्रिया, यानी ऑस्ट्रिया जो था उसका अगला लक्ष्य था और ऑस्ट्रिया को जो है पराजित कर उत्तर जर्मन कॉन्फ्रेंस का गठन भी किया गया। और बिस्मार्क ने इटली को जो है वेनिस के प्रांत का जो है वादा किया और उसे युद्ध से बाहर भी रखा। कहते ऑस्ट्रिया का इटली से नियंत्रण खत्म कर दिया और उसने फ्रांस को नेपोलियन द्वितीय को क्षेत्रीय जो मुआवजा देने का वादा भी किया और उसे युद्ध के बाहर भी रखा गया। उसे पहले से ही रूसी नियंत्रित पोलैंड में विद्रोह दबाने के बदले रूस का समर्थन हासिल कर लिया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट था। पर एशिया की जर्मनी में प्रभुता के लिए अब केवल दो बाधा थी। एक बाधा थी दक्षिण जर्मनी के 4 छोटे जर्मन राज्य और फ्रांस के नेपोलियन द्वितीय की अस्वीकृति। तो ये जर्मनी की प्रभुता के लिए सबसे दो बाधाएं थी, एक दक्षिण जर्मनी के 4 छोटे जर्मन राज्य और फ्रांस के नेपोलियन द्वितीय की अस्वीकृति। लेकिन दोनों देशों के बीच असहमति ने फ्रांस को प्रेशिया से युद्ध के लिए उकसा दिया। लेकिन देखा जाए दोनों देशों के बीच असहमति के कारण प्रेशिया के जो है युद्ध के लिए काफ़ी उकसाया भी। और कहते हैं फ्रांको प्रेशिया युद्ध काफ़ी छोटा था। प्रेशिया ने 1871 में फ्रांस पर आक्रमण भी किया और हरा भी दिया, यानी प्रेशिया ने 1871 में फ्रांस पर आक्रमण कर उसे हरा दिया और नेपोलियन के सिंहासन त्यागने और फ्रांस के अलासलस और लेरेन दोनों के लिए मजबूर भी कर दिया, यानी अलासेस और लेरेन के लिए मजबूर भी कर दिया। और नेपोलियन ने उस समय जो है फ्रांस जो है सिंहासन त्याग दिया। 6 जर्मन राज्यों पर ऑस्ट्रिया को छोड़कर कब्जा कर लिया और वे जर्मनी के साथ शामिल भी हो गए। जर्मनी का एकीकरण कैसर विलियम्स के द्वारा पूरा भी किया गया और जल्द ही जर्मनी यूरोप में अग्रणी बन गया, यानी जो है जर्मनी यूरोप में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया और उसने अपने आर्थिक हित को आगे बढ़ाया और दुनिया में जर्मन प्रभाव बढ़ाने के लिए एक जो है उपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में उभर के सामने आया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण थी।